detector in the PC, so it's difficult to understand. So I'm going to repeat some basic idea about the image, how we can represent the digital image and all. Okay, then I will continue the next point. So suppose I want to convert the first analog image into the digital image, and there are the two different process for that: sampling and quantization. Okay, so we have discussed about the how we can do the sampling and how we can do the quantization of that. Then we will get the digital image. So whatever the techniques for the image processing, we have to apply on the input image. So input image is always digital image only. So digital image is always represented in a matrix form. So this is the representation, how we can represent the image like this. So this is my x coordinate. This is my suppose x coordinate. This is my y coordinate. So now suppose I am representing my image in the size of 3 by 3. Okay. So I can represent like that. This is first middle one point, it is the x1, this is your x, this is your y. So this pixel, these are the all are the pixels. Okay, any image, it is the group of the number of pixels. These all are the pixels like that. Okay, the small element, it is known as the pixels. So here there are the total 9 pixels: first, second, third, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So intersection of these two coordinates x and y, so it is represented by f of x comma y. Okay, so f is indicate my image, digital image. X and y are coordinates. Okay, so it is the intersection of x and y point, so it is called the f of xy pixel. Okay, the pixel name is f of xy, and this pixel has, it is called the location of the image. An individual pixel has its own values. It is called the pixel value. Fine. Now similar, this point I can represent f of, yeah, now in the on the axis you can see it is the x plus 1, this is x minus 1, this is y plus 1, and this is y minus 1. Correct? Understood? How we can represent plus 1 minus 1? Any doubt? No, ma'am. आप लोगों का आवाज मुझे बहुत कम आ रहा है. No, ma'am. नो मैम. मैम एक और बार एक्सप्लेन करो ना. Yes, I'm going to explain. Just wait, मुझे check करने दो volume. ओके, सो अगर आप कोई भी एक्सिस कंसिडर सपोज करते हैं हम लोग, सो दिस इज माई सपोज 0 x एक्सिस, और हियर द वैल्यू x इज इक्वल टू 0. ये 0 है, तो डेफिनेटली इफ यू गो दिस साइड then it increase 1 2 3, and suppose you are going this side, then it -1 -2 like that. This is your y axis. Suppose y is equal to 1 here, so upside it is increase 2 3 4, downside it is decrease. So similar here, this is middle one point, it is my x comma y, f of x y. So if I'm going this side, right hand side, so it is consider x plus 1. Suppose x is equal to 0, so definitely this is 1, then 2, then 3, then 4, and this is x minus 1. So 0 minus 1, that is -1 -2 -3 like that. Now in the y-axis, same. If you are going up, that is y equal to suppose 0, then this is 1 2 3 4 like that, and in downside it is -1 -2 -3. Okay, but here I am considering only 9 pixels, so I can represent like that: f of xy, middle one is my f of xy. So what is the how we can indicate this pixel in terms of the x and y? Anyone please? How we can represent this pixel? F of what? X plus 1 comma y. X plus 1 comma y. Okay, मैम एक डाउट है. sorry. मैम y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 फिक्स वैल्यू है क्या? No, it's not fixed value. You can take any value. So मैंने इसीलिए जर्नलाइज उसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ. दिस इज माई एक्स, दिस इज माई एक्स प्लस 1, दिस इज माई एक्स माइनस 1, दिस इज वाई, दिस इज वाई प्लस 1, दिस इज वाई माइनस 1. अगर मैं और उस साइड पे कंसिडर करती हूँ, तो एक्स प्लस 1 की जगह पे अगर मैंने टोटल मोर देन 9 पिक्सल कंसिडर किया, ओके, तो मैं एक्स डायरेक्शन में अगर राइट हैंड साइड जाती हूँ, तो नेक्स्ट पिक्सल मेरा आएगा एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3 लाइक दैट. ओके मैम, ओके मैम. Okay, I am considering only 9 pixels. Okay, so middle one is f of xy, right hand side in this row this is x plus 1 comma y. तो ये पिक्सल को क्या रिप्रेजेंट करेंगे? दिस वन,
Anyone? f of x minus X minus y. X minus y नहीं, X minus x 1 minus X 1 minus 1 comma comma y. comma y. या ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जितने भी मैथमेटिकल एग्जांपल्स आएंगे इसमें अपने को पिक्सल रिप्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए. ओके, क्योंकि उसको यूज करके हम लोग एग्जांपल्स सॉल्व करेंगे. So if presentation of 9 pixel you should know. Fine, simple है, axis ही है और कुछ नहीं है इसमें. Similar this pixel we can write down x plus 1 comma y plus 1. Now this one f of x comma y plus 1 and this one is this one f of x minus 1. आप साथ में अगर पॉसिबल है ना तो लिखते जाओ f of x minus 1 comma y plus 1. Now, similar, this down one, we can represent f of x minus 1, comma y minus 1. Now, this one, f of x, comma y minus 1. And the last one, f of x plus 1, comma y minus 1. Okay? So, this is the representation of pixel in digital form. Now, each and every pixel, f of x comma y plus 1, f of x comma y, each and every pixel has a own value. यहाँ पे तो सिर्फ मैंने coordinate से उसको represent किया है. So suppose I am considering my pixel in 3 by 3 matrix, 0 1 0 0 0 0 and 1 1 1. Okay, मैंने ऐसी कोई matrix consider किया है 3 by 3 matrix. तो this particular image has only two values. That means we can say the pixel has only two values. One is 0 and another one is 1 only. Okay. So this, so I can say this is my f of x minus 1, y plus 1. Okay. This one. This is middle one is f of x comma y. तो यहाँ पे उससे in terms of the coordinates मैंने represent नहीं करते हुए उसको particular value से represent किया है. This is my pixel value. और this image has only 2 pixel value. या तो 0 या तो 1 है. तो what do you mean that it is the black and white image? ये कौन सा image होगा आपका? Black and white होगा. Black and white क्यों? Black is always represented by 0 and 1 is always represented by white is always White is represented by 1. Okay? Black means 0 and white means 1. तो यहाँ पे जो image है, image has only black color and white color, 0 value and 1 value. दो वैल्यू क्यों मिला? क्योंकि जो पिक्सल है दिस पर्टिकुलर पिक्सल आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट विथ अ सिंगल बिट. एक ही बिट से रिप्रेजेंट किया. दैट मीन 2⁻0. दैट इज 2⁻1. द बिट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सॉरी मैं वापस म्यूट ले रही हूं, 2⁻1. द नंबर ऑफ बिट्स आई एम यूजिंग टू रिप्रेजेंट माय पिक्सल. So 2⁻1 is equal to 1. So 1 it is indicate the number of bits. It is indicate the number of bits to represent the single pixel. So there are two different possibilities. One is 0 and another one is 1. Okay. So here suppose I am going to represent the 1 pixel by 2 bits instead of 1. So 2⁻2. So there are the total 4 different values. Okay. There are the 4 different values. How? Which possibilities are there? 0 0 0 1. 1 0 and 1 1. So 0 0 it is indicate the black color and 1 1 it is indicate the white color. So in between that the 0 1 and 1 0, these two are the gray shades. So here we can say there are the total 4 different gray levels. Which one? 0 1 2 and 3. That when you convert these values in the decimal form, so you will get the 0 1 2 3. And 0 1 2 3 are considered as a gray levels. Okay, ये सब क्या है आपका ग्रे लेवल्स है. इतने नंबर ऑफ द ग्रे लेवल्स मिले. पिक्सल वैल्यू नहीं है. अभी यहाँ पे मुझे टोटल कितने पिक्सल? 4 मिला. तो अगर मेरा 3 by 3 का मैं कोई इमेज कंसिडर करती हूँ, ओके, तो यहाँ पे उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा? 0 1 0 1 2 3 0 1 1 1 3. ओके, तो आप यहाँ पे चेक करो ये इमेज में 0 1 2 3 0 1 1 1 3.
तो उसका मतलब है कि यहाँ पे 2 मीन्स पिक्सल वैल्यू, उसका वैल्यू 2 है। ओके, तो उसको अगर बिट्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा? 2 इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 0। ओके, 3 दैट मीन इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 1। तो ये कंसेप्ट अभी बाद में सीखेंगे कि उसका यूज कैसे करना है एग्जाम्पल में। बट दिस आर द ग्रे लेवल्स। तो टोटल 4 ग्रे लेवल्स मिल सकते हैं कब? व्हेन यू रिप्रेजेंट अ सिंगल पिक्सल विद द 2 बिट्स। ओके, नाउ suppose I am representing the 1 pixel with the 3 bits, so there are the total 8 different possibilities of that. तो आपको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द ग्रे लेवल्स कितने मिलेंगे? 0 to 7। ओके, 0 0 0 to 1 1 1, so it's a 0 to 7। तो जैसे नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज होते हैं टू रिप्रेजेंट द सिंगल पिक्सल, ऐसे ऐसे आपका नंबर ऑफ द ग्रे शेड्स इंक्रीज होते हैं, और अकॉर्डिंगली दैट द क्वालिटी ऑफ द इमेज विल बी इंक्रीज, जो मैंने कल डिस्कस किया था। क्लियर? मैम फॉर कलरफुल कलरफुल वो इमेज कैसे? में एक्चुअली कलरफुल इमेज में क्या होता है? आरजीबी, दैट इज द मेन कलर्स। ओके, तो एक इंडिविजुअल जो कलर है आर, दैट इज 8 बिट, 8 बिट और 8 बिट, तो टोटल उसका 2:8, 2:8 एंड 2:8, ये तीनों का जब करते हैं तब टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल शेड्स मिलते हैं आपको। तो उसके नंबर ऑफ द ग्रे लेवल्स बहुत होते हैं, और ये जो बीट रहता है ना आरजीबी, इट इज कॉल्ड द 32 बिट प्रेजेंटेशन ऑफ इमेज। उसको तो 2:32, तो ये अपने नंबर ऑफ द पॉसिबिलिटीज जो भी वैल्यूज आता है, इतने सारे शेड्स पॉसिबल है। बट जब हम लोग ग्रे वैल्यू कंसिडर करते हैं, ग्रे इमेज कंसिडर करते हैं, तो इसमें मैक्सिमम 2:8 पॉसिबल है। मैक्सिमम 1 पिक्सल को 8 बिट से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सफिशिएंट है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है। तो 256 लेवल्स होते हैं। तो जो भी एग्जांपल होता है, तो इसमें मोस्टली आपको 0 to 255 ग्रे लेवल्स मिलेंगे। 255 it is indicate the white color, 0 is indicate the black color, and in between that all are the different gray shades. अभी शेड्स कैसे? पिक्सल वैल्यू किस पर डिपेंड होता है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट, जो उस पर लाइट इम्पोज होता है। अभी कोई भी आप इमेज को कैप्चर कर रहे हो, तो वो इमेज पे कितना लाइट इम्पोज हो रहा है, अकॉर्डिंगली दैट वो पर्टिकुलर पिक्सल का आपको वैल्यू मिलेगा। सपोज मुझे वैल्यू मिला है 10, ओके, दैट मीन वो पर्टिकुलर पिक्सल पे जो लाइट आ रहा था वो बहुत ही कम था, तो इसीलिए वो डार्क इमेज कंसिडर किया जाएगा। उसको आप जब कैप्चर करेंगे तो वो डार्क आएगा, तो इसीलिए उसका पिक्सल वैल्यू 10 ही आए। अगर कोई पर्टिकुलर पिक्सल पे लाइट ज्यादा है तो इट इज सिमिलर लाइक एज 240, उसका पिक्सल वैल्यू 240 रहेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वैल्यू? तो पिक्सल वैल्यू इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लाइट व्हिच वन इज इम्पोज्ड ऑन द इमेज, ऑन द पिक्सेल्स। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये मैंने रिपीट किया क्योंकि कल टैब नहीं था, तो थोड़ा डिफिकल्ट था वर्बली समझाना। ठीक है, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते यस हैं। या और ये कंसेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन मैम वो कैसे होता 250 230 वो डेसिमल फॉर्म में था ना? है। हाँ, 230 250 डेसिमल वैल्यूज है सर। उसको बाइनरी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो 230, मतलब आपको वो पर्टिकुलर जीरोस एंड वंस के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ मैम समझा। या ओके, ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, अभी थियरी में नहीं है क्वेश्चन, मतलब आएगा नहीं एग्जाम में, तो उसको वापस टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग। फाइन, नाउ या इमेज टाइप्स एंड फॉर्मेट्स, ये भी सिलेबस में पर्टिकुलर पॉइंट नहीं लिखा है, बट मैं गो थ्रू हम लोग देख लेते हैं क्या क्या टाइप्स रहते हैं। बाइनरी इमेज, तो डेफिनेटली इट्स वी कैन आल्सो से इट्स अ मोनोक्रोम इमेज, दैट इज पिक्सल वैल्यू इज ओनली 2 वैल्यूज आर देयर, 0 and 1, ब्लैक एंड व्हाइट इमेज वी कैन से। ओके, नाउ ग्रेस्केल इमेज, ग्रेस्केल में 0 to 255 शेड्स रहेंगे, दैट इज 2:8, 1 पिक्सल इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 8 बिट्स, सो इसको ग्रेस्केल इमेज बोला जाता है। कलर इमेज टोटल 24 बिट का रहेगा। कैसे 24 बिट? आरजीबी इंडिविजुअल का बिट्स कंसीडर करके उसको टोटल 24 बिट हम बोल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज इमेज फाइल फॉर्मेट। आपने देखा होगा, आप जब भी यूज करते हो इमेज को सेव करते हैं हम कहीं पे भी, तो पीएनजी फॉर्म रहता है, जेपेग फॉर्म रहता है, बीएमपी फॉर्म रहता है, जीआईएफ, राइट? तो ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इमेज फाइल को सेव करने के लिए फॉर्मेट को यूज किया जाता है।
मैम इसमें रॉ नहीं है, सॉरी, रॉ टाइप ऑफ इमेज फाइल। नहीं, रॉ टाइप तो मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना। क्या है वो उसका डीएसएलआर में जब लेते पिक, हाँ, तब वो रॉ फॉर्मेट में सेव करता है फाइल। डीएसएलआर में तो इमेज जेपेग फॉर्मेट ही लेता है ना शायद। नहीं मैम, उसमें CR3 रॉ वैसे टाइप ही रहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ मतलब मैं इतने साल से ले रही हूँ, रॉ फॉर्मेट ऐसा कुछ आया नहीं है, मैंने भी ओके मैम, क्योंकि मेरे डीएसएलआर में वैसे सेव होता है ना, इसके लिए। उसको स्पेल आउट करो, क्या है एग्जैक्टली वर्ड्स, एक्सटेंशन क्या रहता है उसका, डॉट, मैम बाद में बात करता हूँ आपसे। या मुझे टेक्स्ट करना, मैं भी चेक करती हूँ कि एग्जैक्टली वो है क्या। फाइन, ओके मैम। ओके। सो मैम ये कंप्रेस नहीं रहता ना रॉम इमेज? एक्चुअली जेपेग इज आल्सो कंप्रेस्ड फॉर्म। अब जेपेग रॉ है ना, नहीं उसमें रहता। भी यस मैम, वो जेपेग ही होता है। हाँ, नॉर्मली वो जेपेग इज कंप्रेस्ड फॉर्म, वो ओरिजिनल है, उसको वो साइज में रिड्यूस मैम करके रॉ ही ना अपन। कंप्रेस फॉर्म नहीं होता। रॉ मुझे नहीं पता है, तो मैं उसके बारे में कुछ अभी नहीं बोल सकती। आई नीड टू स्टडी अबाउट दैट, व्हाट इज द रॉ। ओके, तो उसका प्रॉपर एक्सटेंशन क्या है मुझे टैक्स करना 34, देन आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। फाइन। Now next one is the type of the resolution. So there are the two different type of the resolution. One is the spatial resolution, another one is the intensity resolution. तो spatial resolution क्या है, उसको कैसे मतलब हम लोग कंसिडर करते हैं? तो spatial resolution that means overall image में number of the pixels कितने यूज हुए उस पर डिपेंड करता है। तो उसकी शार्पनेस कैसी है, क्वालिटी ऑफ द इमेज कैसा है, क्लियरिटी कैसी है, तो इट इज कॉल्ड द स्पाशियल रिजोल्यूशन। ओके, तो जब भी आप स्पाशियल रिजोल्यूशन कंसीडर करते हैं तो हम लोगों को सेम साइज का इमेज लेके ही कंसीडर किया जाता है। सपोज ईयर मैंने एक एग्जांपल लिया है, दिस आर टू डिफरेंट सेम इमेज, बट मैंने क्या किया है कि मेरे फर्स्ट इमेज का जो साइज था वो उसको मैंने जूम आउट किया और उसके साथ में कंपेयर कर रही हूँ, और मैं बाद में बोल रही हूँ कि ये इमेज ज्यादा क्लियर है कि नहीं है, तो वो रॉन्ग चीज है। वो मेथड है स्पाशियल रिजोल्यूशन फाइंड करने का, दैट इज द रॉन्ग मेथड। क्यों? when you are find out the spatial resolution of any image, you have to take the same size of the images. okay, उसको zoom करके मैं उसको दूसरे इमेज के साथ कंपेयर नहीं कर सकती। तो नेक्स्ट स्लाइड में यू कैन सी हियर, ये दोनों मैंने सेम साइज के इमेज लिए, but this one right hand side जो image है, it is a blurred than the left hand side image. okay, so I can compare these two image and I can say the left hand side image has a more spatial resolution than right hand side image. okay, so spatial resolution क्या दिखाता है, that is the sharpness of the image, कि total number of the pixels कितने यूज किया है इमेज में, जितने ज्यादा पिक्सल्स यूज किए उतना क्वालिटी ऑफ द इमेज डेफिनेटली इंक्रीज होगा, शार्पनिंग डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ओके, सो अगर मोर पिक्सल्स यूज किए हैं दैट मीन वो इमेज का क्वालिटी अच्छा है। तो यहाँ पे आपको ये ब्लर इमेज दिख रहा है, दैट मीन उसका स्पाशियल रिजोल्यूशन अच्छा नहीं है। अभी स्पाशियल रिजोल्यूशन को कैलकुलेट मेजर कैसे किया जाता है, दैट देयर आर द थ्री डिफरेंट मेथड फॉर दैट। First one is the DPI, dots per inch, lines per inch, and third one is the pixel per inch. तो ये अलग अलग मेथड है। डॉट्स पर इंच एंड लाइंस पर इंच हम मोस्टली हम लोग प्रिंटर्स के लिए यूज करते हैं। ओके, और सॉरी, मोस्टली जो डिवाइसेस रहते हैं मोबाइल्स एंड ऑल, जिसमें हम लोग पीपीआई यूज करते हैं, पिक्सल्स पर इंच। तो पिक्सल पर इंच को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस मोबाइल डिवाइस। ओके, नाउ इन दिस डिवाइस में इफ आई वांट टू फाइंड आउट द व्हाट इज द पीपीआई ऑफ दिस डिवाइस, तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो दिस इज द फॉर्मूला। ओके, नाउ इन दिस फॉर्मूला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो आप जब भी डिवाइस लेते हो इसमें रिजोल्यूशन ऐसे पिक्सल्स का लिखा हुआ रहता है, हाइट एंड विड्थ। ओके, तो उसका ये पिक्सल्स है, सपोज 1080 बाय 1920 पिक्सल्स है। ओके, तो ये हो गया उसका हाइट और ये हो गया उसका विड्थ, दैट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ए एंड बी ये फॉर्मूला में मैं सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी, तो आई विल गॉट दिस आंसर, सी इज इक्वल टू दिस वन। अभी मुझे पीपीआई कैलकुलेट करना है, तो व्हाट एवर द वैल्यू आई विल गेट इन सी, उसको मुझे डिवाइड बाय सी डिवाइड बाय डायगोनल साइज इन इंचेस।
अब जब भी मोबाइल लेते हैं तो हम जो भी इंचेस कितनी साइज का मोबाइल है तो उसका हमेशा वो डायगोनली कैलकुलेट किया जाता है, राइट? 5 इंच का है, 5.5 है, तो 5 इंच दैट मीन इट इज डायगोनल साइज। तो वो डायगोनल साइज क्या है? तो सी डिवाइड बाय डायगोनल साइज। तो सपोज दिस इज द 5 इंच का है, तो मैं उसको डिवाइड बाय 5 करूंगी, और ये जो वैल्यूज मिला 440.5 दैट इज 441, तो ये मेरा हुआ पीपीआई। तो ये मेरा स्पाशियल रिजोल्यूशन हुआ। मैंने कैसे कैलकुलेट किया? पिक्सल पर इंच, इट्स कॉल्ड द पीपीआई। okay, so this is the method how we can calculate the spatial resolution of the particular devices. Sorry. Now dots per inch, तो dots per inch आपको कैसे करना है? Suppose I am taking a printout of any pages, तो how many dots of ink per inch use हो रहा है? How many dots of ink per inch? Accordingly that I can calculate that dots, कितने dots पर, मतलब spatial resolution उसका क्या रहेगा? तो it's called the DPI. Now lines per inch, तो lines of dot per inches, पहले ऊपर वाले में क्या किया? डॉट्स ऑफ इंक, इंक का जितने भी डॉट्स वो जब प्रिंटर में प्रिंट होता है तो वो कैसे प्रिंट करता है, यू नो, उसका मैकेनिज्म अपने को नहीं समझना है, बट हाउ मेनी डॉट्स दे आर यूजिंग पर इंच, इट इज व्हिच वन इज गिव्स द डॉट्स पर इंच, डीपीआई। तो वो अपने को उसका क्वालिटी पता चलेगा, उसका स्पेशल रिजोल्यूशन पता चलेगा। अभी नंबर ऑफ डॉट्स जो है वो डॉट्स, देयर आर मेनी डॉट्स, उसको एक लाइन कंसिडर करूंगी, तो हाउ मेनी लाइंस, which one is how many lines per inch, okay, तो किसका लाइंस कंसिडर कर रहे हैं? डॉट्स का। तो इट इज द फॉर्म ऑफ द, जो भी आपका लाइन फॉर्म हो रहा है वो कैसे फॉर्म हो रहा है? डॉट्स से फॉर्म हो रहा है। तो नंबर ऑफ द डॉट्स which one is makes the one line, so how many lines are considered per inch, तो अकॉर्डिंगली दैट which one is gives the lines per inch, तो ये भी मोस्टली प्रिंटर में यूज किया जाता है। तो डीपीआई, एलपीआई, वी हैव टू which one is gives the spatial resolution of printer type devices, okay, so this is the way which how we can measure the spatial resolution. Now the next one is the intensity resolution. So mostly intensity resolution means what? स्पाशियल रिजोल्यूशन और इंटेंसिटी रिजोल्यूशन में डिफरेंस क्या है? स्पाशियल रिजोल्यूशन में नंबर ऑफ द पिक्सल ऑफ ओवरऑल इमेज का कंसीडर किया जाता है, बोथ आर द रिलेटेड। और इंटेंसिटी रिजोल्यूशन में क्या है? नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच कंसीडर किया जाता है। जैसे मैं नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच इंक्रीज करूंगी तो डेफिनेटली नंबर ऑफ द पिक्सल इन इमेज इंक्रीज होने ही वाला है। तो वो अगर मेरा इंटेंसिटी रिजोल्यूशन अच्छा है तो डेफिनेटली स्पाशियल रिजोल्यूशन ऑफ इमेज अच्छा मिलेगा ही। और इंटेंसिटी रिजोल्यूशन नंबर ऑफ पिक्सल्स पर इंच, और नंबर ऑफ पिक्सल्स में वन पिक्सल को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स यूज कर रहे हैं, कितने बिट्स आप यूज कर रहे हो इस पर डिपेंड करेगा। If I am using the more bits to represent one pixel, so definitely you will get the sharp image. You will get the good quality of image. Okay. So it is called the intensity resolution. So यहाँ पे ये टेबल में suppose I am using the 1 bit, so 2:1. There are two different values, 0 and 1 only. 2:2, total 4 values. This is the representation which I have already explained. Okay. So this is called the intensity resolution. So there are the two different resolutions, spatial resolution and intensity resolution. Clear? Any doubt? Yes, ma'am. Okay. No, ma'am. Now, yeah. Now the basic relationship between the pixels. पिक्सल्स तो सीख लिए मैंने, हम एक्सप्लेन कर लिया, हमको पता चल गया पिक्सल क्या है। इमेज में बहुत सारे पिक्सल्स है, बट वो सारे पिक्सल का एक दूसरे से रिलेशनशिप क्या होता है, किसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, सो हियर वी कैन सी, मैं उसको ओके फाइन स्लाइड। अगर दिस इज माय पिक्सल, दिस इज माय इमेज, डॉट डॉट डॉट्स जो भी है ऑल आर द माय पिक्सल्स। ओके, तो सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस एस इज इंडिकेट द सेट ऑफ द पिक्सल्स, जो टोटल 12 पिक्सल्स कंसिस्ट करता है। नाउ इन दैट f of xy, so definitely it is the image f of xy. S क्या है? It is subset of pixels.
Now P and Q, I am considering P and Q two different pixels. Okay, and वो दोनों का रिलेशन क्या है वो मुझे एक्सप्लेन करना है. फाइन. So P and Q both are the particular pixel in an image. This is my Q and this is my P. Now, what is the relation of P and Q? How we can represent the relation between the P and Q? So there are the three different methods for that. First one is the N4, next is the ND, and next one is the N8. अभी just a minute, उसमें लिख के बताती हूँ आपको. Pen. Yeah. So it is called the basic relationship between them. अगर उनका आप चेक करेंगे, N4 neighbors and 8 neighbors. Yeah. So this is first one is N4, second is the N8. Sorry, in between that ND. There are the three different relationship between the pixels. Okay. अभी N4 क्या है? तो suppose मैंने ये consider किया, ये मेरा image है. इसमें बहुत सारे ऐसे आपके पिक्सल्स हैं. ओके, मैं ए के पिक्सल कंसीडर कर रही हूँ, ए के पिक्सल कंसीडर कर रही हूँ, और ये मेरा है पी पिक्सल. ओके, दिस इज माय पी एंड दिस वन इज माय क्यू पिक्सल. नाउ पी एंड क्यू के बीच में रिलेशन क्या है? तो फर्स्ट एक रिलेशन N4 हो सकता है, या तो ND हो सकता है, या तो N8 हो सकता है. N4 मीन्स व्हाट? तो अगर मैं ऐसा मेरा पिक्सल मैंने कंसीडर किया है, दिस इज माय पिक्सल पी, 1 पिक्सल यहाँ पे है, 1 पिक्सल यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है और 1 एक यहाँ पे है. ओके, तो अगर ये पिक्सल P और यहाँ पे जो पिक्सल है सपोज वो Q है, तो P एंड Q अगर एक दूसरे से ये दो पिक्सल को अगर मुझे साथ में कनेक्ट करना है तो मैं बोल सकती हूँ N4 कनेक्टेड. तो उसका नेबर्स, अभी N4 नेबर्स मीन्स व्हाट? ए पिक्सल के N4 नेबर्स कौन से पिक्सल हुए? ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ और ये हुआ. ये चार पिक्सल that are the N4 neighbors of pixel P. Okay. Similar ND D is indicate the diagonal. तो जब भी ये पिक्सल, अगर ये मेरा P पिक्सल है तो उसके डायगोनल में एक पिक्सल है, एक यहाँ पे डायगोनल में है, एक यहाँ पे डायगोनल में है और एक यहाँ पे डायगोनल में. So these are considered as the ND neighbors of the pixel P. Okay. तो डायगोनल जो नेबर्स है उसको ND नेबर्स बोलेंगे. इट्स कॉल्ड द नेबर्स का N और D दैट मीन डायगोनल. ओके, N8 में क्या आएगा? N4 भी आएगा और ND भी आएगा. तो इट्स कॉल्ड द 8 नेबर्स ऑफ P. तो उसमें A भी कंसीडर होगा, डायगोनल भी कंसीडर होगा और स्ट्रेट वाला भी कंसीडर होगा. तो ये उसके टोटल 8 नेबर्स हो गए. तो इट्स कॉल्ड द N8. ओके. Now you can see the number of pixels how we can represent. So this is my pixel. I am considering total 9 pixel. ये मैंने पहले भी आपको explain किया उसको. ठीक है, तो ये टोटल 9 पिक्सल्स हो गए. ओके, तो 9 पिक्सल को एक दूसरे से साथ उसके जो नेबर्स है अकॉर्डिंगली दैट उसको नाम दिया है N4, ND, N8. अगर N4 कंसिडर करते हैं सो इन बिटवीन द टोटल सपोज P1 टू Pn मैंने P1 टू P9 मैंने नाम दे दिया है, P1, P2, P3 up to P9. Okay, now you can see this is my pixel P5. तो अगर P5 के मुझे N4 नेबर्स कंसीडर करना है तो कौन से आएंगे? तो मैंने जहां पे एरो किया है P2 आएगा, P4 आएगा, P6 आएगा, P8 आएगा. ओके, सो दिस आर माय द, और ये दोनों है P4 एंड P6 are considered as the horizontal neighbors and P2 and P8 are considered as the vertical neighbors. तो अगर आपको सेट लिखना है N4P तो आपके कौन से आएगा? P2, P4, P6 and P8. So we can say this is the set of pixels N4P. Okay, now next NDP. P it is indicate a pixel. आप जो पिक्सल को कंसीडर करके उसके नेबर्स फाइंड कर रहे हैं वो, अगर Q करते तो उसको NDQ बोलते हैं हम लोग. जो भी ये वेरिएबल है जिसको मैंने रिप्रेजेंट किया है पर्टिकुलर पिक्सल से. ओके, नाउ कंसीडरिंग द डायगोनल नेबर्स ऑफ दैट, तो ये में से 4 डायगोनल नेबर्स कंसीडर हुआ. व्हिच वन? दिस वन,
दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, ये चार कंसिडर किया जाएगा. ओके, एफ ऑफ एक्स वाई के चार डायगोनल है, दिस, सॉरी, दिस एंड दिस वन. तो अगर मैं एग्जांपल के साथ कंसिडर करूं, सपोज P5 इट इज माय मिडल वन पिक्सल और उसके चार डायगोनल नेबर्स क्या क्या आएगा, NDP क्या आएगा, तो NDP में P1 आएगा, P3 आएगा, P7 आएगा एंड P9 आएगा. तो दिस इज द सेट ऑफ द diagonal of P5. Now N8. N8 we have to consider the N4 as well as ND. So there are the total 8 neighbors of the pixel P. This is my middle one, P of x, y. तो उसके आजू बाजू के जितने भी पिक्सल्स है, टोटल 8 पिक्सल्स नेबर्स है उसके, तो उसको इसमें कंसिडर किया जाएगा. तो P5 के अगर सेट ऑफ कंसिडर करते हैं, सेट ऑफ N8P क्या होगा, दैट इज P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8 एंड P9. It is called the 8 neighbors of the pixel P. क्लियर, नेबर्स समझ में आ गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके फाइन. नाउ अभी ये नेबर्स के साथ पिक्सल को कनेक्ट, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे पिक्सल एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं. जब कनेक्ट करते हैं पिक्सल टू पिक्सल, तो वी हैव टू कंसीडर सम क्राइटेरिया फॉर दैट. ओके, तो पिक्सल दैट इज कॉल्ड द कनेक्टिविटी एडजेसेंसी ऑफ दैट. तो अगर ये जो इसमें ग्रीन कलर है ना, वो सारे मेरे पिक्सल्स हैं, फाइन. तो अगर वे सारे पिक्सल्स को मैंने एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट किया, तो वो कनेक्टिविटी से मुझे पर्टिकुलर कोई भी इमेज का बॉर्डर मिल सकता है. बॉर्डर दैट मीन्स नेक्स्ट में चक, सपोज ये हम कंसिडर करते हैं, तो दो पिक्सल को मुझे कनेक्ट करना है कि नहीं करना है, वो किस पे डिपेंड करता है. नाउ यू कैन सी हियर, यहाँ पे ए एक पूरा रीजन है जिसमें ये सारे पिक्सल्स कनेक्ट हुए हैं. दिस इज, अभी जो एक इंडिविजुअल बॉक्स है ना, छोटे छोटे जो स्क्वायर बॉक्स है, दैट मीन इट इज माय इंडिविजुअल पिक्सल. हाँ, तो दिस इज माय 1 पिक्सल, 2 पिक्सल, 3 पिक्सल. तो ये 3 पिक्सल को मैंने एक साथ कनेक्ट किया, उसको फोर्थ के साथ ऐसे वर्टिकल कनेक्ट किया, देन वर्टिकल यहाँ पे कनेक्ट किया, तो एक पूरा ये जो बना उसको हम रीजन बोलते हैं. तो प्रीवियस में वही था, ये सारे पिक्सल्स को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया, दैट मीन ऐसी कुछ बॉर्डर मिल गई, तो ये मेरा एक पर्टिकुलर रीजन हो गया. ओके, दैट इज द रीजन 1. तो इस सारे नंबर ऑफ द पिक्सल्स जब ग्रुप फॉर्म करते हैं, तो पर्टिकुलर रीजन क्रिएट करते हैं. ओके, तो नाउ यू कैन सी हियर, दैट इज माय सेकंड रीजन जो ग्रीन कलर्स के है. इंडिविजुअल पिक्सल को भी रीजन बोला जाता है, इट इज द सेपरेट. ये अलग ब्लू कलर है, इट इज कंसिडर एज अ रीजन, जिसमें एक ही पिक्सल है. नॉट नेसेसरी कि बहुत ज्यादा पिक्सल्स होने चाहिए, सिंगल पिक्सल इंडिविजुअल भी उसको रीजन कंसिडर किया जाता है. दिस इज माय फोर्थ वन, दिस टू आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, तो दिस इज माय फिफ्थ वन. ओके, अभी ये कनेक्ट कैसे होता है, उसके क्राइटेरियाज क्या है, वो कनेक्टिविटी. तो इट इज कॉल्ड द 4 कनेक्टिविटी, 8 कनेक्टिविटी एंड M कनेक्टिविटी. So what is the 4 connectivity? 4 connectivity means it is related to the N4 neighbors. अभी N4 neighbors में क्या था, मिडल वन के साथ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली पिक्सल होते हैं, या ऊपर होता है, नीचे होता है, राइट साइड होता है और लेफ्ट साइड होता है. तो ऐसे N4 कनेक्टिविटी है, दैट मीन पिक्सल P एंड पिक्सल Q. अगर मुझे दोनों को कनेक्ट करना है और N4 कनेक्टिविटी यूज करना है, तो ऐसा, अभी आप यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट पोर्शन है, यहाँ पे ये दोनों को मैंने कनेक्ट किया है. ओके, इट इज कॉल्ड द N4 कनेक्टिविटी. दिस टू आर ऑल्सो कॉल्ड द N4 कनेक्टिविटी. दिस वन इज ऑल्सो नॉन एज द N4 कनेक्टिविटी. दिस वन इज ऑल्सो नॉन एज द N4 कनेक्टिविटी, क्योंकि वो मैंने हॉरिजॉन्टली वर्टिकल साथ में कनेक्ट कर दिया है. अभी ये दोनों मैं कंसिडर करती हूँ, दिस टू, तो इट इज कॉल्ड द ND कनेक्टिविटी. वो मैंने डायगोनली कनेक्ट किया, ये दोनों पिक्सल कनेक्ट एक दूसरे से, तभी तो ये रीजन पूरा कंसिडर किया है एक ही रीजन में. ओके, तो अगर ऐसे डायगोनल कनेक्टेड है, देन इट्स कॉल्ड द ND कनेक्टिविटी. अगर उसको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकली सिर्फ कनेक्टेड है, देन इट्स कॉल्ड द 4 कनेक्टिविटी. तो अभी आप ये रीजन कंसिडर करते हो, दिस फर्स्ट वन, तो वो आपका 4 कनेक्टिविटी है, क्योंकि वहीं पे कहीं पे भी डायगोनली कनेक्टेड नहीं है. तो दिस इज माय N4 कनेक्टिविटी. ओके, अभी कनेक्शन करना है एक पिक्सल का दूसरे पिक्सल के साथ,
तो नॉट सारे पिक्सल को एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, उसके लिए पर्टिकुलर सेट दिया जाता है। तो सेट मीन्स व्हाट, इसमें पर्टिकुलर आपको बोला है कि v ऑफ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय v, तो v इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 21 एंड 23। ओके, एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक सेट इंडिकेट किया है v इज इक्वल टू 21 एंड 23। ओके, और एक इनपुट इमेज आपको दिया है ऐसे मैट्रिक्स फॉर्म में, और मैट्रिक्स फॉर्म में बहुत सारी रोज है, साइज है कुछ, सपोज 5x5 है। ओके, इमेज का साइज 1 2 3 4 एंड 5, 4 रोज हुई है ना। ओके, दिस इज माय 5th रो। ओके फाइन, 5x5 का आपको कुछ इमेज दिया है, इसमें सब पिक्सल्स वैल्यू दिए हुए हैं। ये 0 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 21 है, ये 12, it is 6, 16, 20, then 23, then 21। तो ऐसे कुछ कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आपको जो सेट दिया ना v इज इक्वल टू 21 एंड 23, दैट मीन जब आप पिक्सल्स को कनेक्ट करना है, ये मेरा 21 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 21 है, बाकी दूसरी और कुछ वैल्यूज है, राइट। तो अगर मेरा ये पिक्सल p है और ये पिक्सल q है, तो ये दोनों जब मुझे कनेक्ट करने होंगे, ये पिक्सल से ये पिक्सल तक, तो उसको जब कनेक्टिविटी में करूंगी तो मैं जितने भी पिक्सल्स के थ्रू कनेक्ट हो रहे हैं वो सारे पिक्सल्स 21 एंड 23 के रेंज, मतलब वही होने चाहिए। मैं 12 से या 0 को या 4 नंबर वाले पिक्सल को यूज नहीं कर सकती, तो मैं उसको ऐसे कनेक्ट करूंगी, लाइक दिस। मेरा जो पाथ जाएगा कनेक्शन का, उसमें सिर्फ 21 एंड 23 वैल्यू वाले पिक्सल ही आएंगे। तो ये सेट इंपॉर्टेंट होता है, आपको हमेशा सेट दिया जाता है एग्जांपल के लिए भी, जिसमें जो भी वैल्यूज दिया है वो वैल्यूज को ही आपको कनेक्टिविटी में यूज कर सकते हो, वो पाथ में यूज कर सकते हो। क्लियर, समझ में आया? यस मैम। या एग्जांपल्स करेंगे तो आपको और समझ में आएगा, बट पाथ v क्या होता है वो मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ you can see in the next slide, suppose N4 connectivity. Okay, yeah, here I am considering 4 connectivity. My set value it is equal to 1. Okay, so you can see here these two values, this is my pixel p and this is my pixel q. If I want to connect pixel p with pixel q, तो कैसे होगा, दोनों का वैल्यू क्या चाहिए, 1 1, तो मैं ये दोनों पिक्सल आई कैन कनेक्ट। ओके, तो इसीलिए मैंने उसको एक ग्रुप ऐसे रेड लाइन में बताया कि आई कैन कनेक्ट दिस पिक्सल टू दिस पिक्सल, आई कैन ऑल्सो कनेक्ट this to this. Is it possible 1 and 0, this is my pixel 1 and this is my pixel q, can I connect these two pixel? No, ma'am. Yes ma'am. N4. And 4, yeah, Yes ma'am. no, I can't connect. Why? Because Why? value of 1 0 है ना वो? equal to 0. Value of q is equal to 0. And what is the set? Set is only 1. Okay, the set value it is considered only 1. So I can't connect this p pixel with this q pixel because q pixel value is 0, not 1. तो मैं ये दो पिक्सल को कनेक्ट नहीं कर सकते। Now consider this case. This is the pixel p and this is the pixel q. Both has a value 1 1, and my v is also 1. So I can I connect these two in N4? Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Both has a 1 1 value and both are in N4. N4 neighbors there. Okay. So I can connect N4. I can use the N4 connectivity here. So we can say these are N4 connected pixel. Okay. Now here in the C, this is my pixel P and this is my pixel Q. Now you tell me, can I connect these two pixels? No, No, ma'am. No. Why? because it's dying. ND हो गया ना? That's diagonal. ND. Value is 1 1, but there are in diagonal. Okay.
So I can't say it is N4 connected. So मैं उसको consider N4 connectivity में नहीं ले सकती उसको. So here is one more example. V1 is 1, 2. Okay. What do you mean that? I can consider the pixel value 1 as well as 2. Now रेड कलर्स जो इंडिकेट किया है वो मैंने 1, 2 है उसको रेड कलर से इंडिकेट किया है, रिमेनिंग डिफरेंट कलर से मैंने इंडिकेट किया हुआ है. तो मुझे अभी सिर्फ रेड कलर ही कंसीडर करना है क्योंकि मुझे सेट दिया हुआ है v का वैल्यू है 1 and 2. दैट मीन मेरा जो पाथ होगा, जो पिक्सल्स मुझे कनेक्ट करने होंगे वो 1 या 2 ही एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं. ओके और मुझे कौन सी कनेक्टिविटी यूज करनी है? 4 कनेक्टिविटी. तो 4 कनेक्टिविटी यूज करना है. दैट मीन 1 number I can connect with the 2, 2 I can connect with the 1, and this 2 I can't connect. Okay, because it becomes a diagonally. तो अगर मैं जब कनेक्टिविटी कंसीडर करूंगी, पिक्सल को कनेक्ट करके एक रीजन बनाना होगा, तो I can consider only these 3. 1 is connect to 2 and 2 is connect to 1. Clear? Yes, ma'am. Ma'am, what does N Yes, stand ma'am. Sorry, Ma'am, what does N stands for? N is indicate the neighbors. पहले ही explain Okay, कर ma'am. दिया. Okay. And 4, that means 4 neighbors horizontally and vertically. Okay, now this is another example. V2 is equal to 1 only. Okay, तो अगर मुझे 4 connectivity use करना है तो I can connect this pixel with this one, I can also connect this pixel with this one, this pixel with this one. इन दोनों को मैं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकती क्योंकि वो डायगोनल हो जाएगा. ओके, if I am using the N4 connectivity, then I have to consider this path only. And these 3 are also N4 connected. This is connected to this one and this is connected to this one. So this is the N4 connectivity. Clear? यहाँ पे सिर्फ आपको 1 दिया था तो मुझे 1 को ही कंसिडर करके पाथ बताना पड़ेगा. मैं उसमें जीरोस को कंसिडर नहीं कर सकते. Now next, 8 कनेक्टिविटी या 8 एडजेसेंसी. आप कुछ भी बोल सकते हैं, कनेक्टिविटी भी बोल सकते हो, उसको एडजेसेंसी भी बोल सकते हो. तो 2 pixels P and Q with the values from V are 8 connected. It is represented by N8P. Okay, so here the V1 it is given 1, 2. So we have to consider the pixel value pixels with the values 1 and 2 only. Now 8 connectivity, that means you have to consider the 4 neighbors as well as the diagonal neighbors. That means 8 neighbors you can consider. Okay, so here this 1 is connected by 2, this pixel 1, 2. This is also connected with this 1, 1. This, you can also select this path 1 and 1. Okay, तो हम लोग ये दोनों को भी कनेक्ट कर सकते हैं और ये दोनों को ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं. These 2 are also connected, 1 and 1. Okay, so it is called the 8 connectivity. अभी यहाँ पे ऐसे 2 ऑप्शन हो गया है, तो मैम हमको ये पाथ कंसीडर करना है, ये पाथ कंसीडर करना है, तो ये नेक्स्ट कनेक्टिविटी में आएगा. ओके, उसको बाद में डिस्कस करते हैं. बट हियर व्हाट वी हैव टू कंसीडर, वी हैव टू कंसीडर द पिक्सल वैल्यू with value 1 and 2 only. So we can connect this all the pixel together. Like this pixel is connected to this pixel, this pixel is connected to this pixel, and this pixel is connected to this pixel. So it is called the 8 connectivity. अभी मैंने आगे आपको एक दिखाया था ना, yeah. So it is the 8 connectivity region. क्योंकि यहाँ पे N4 भी यूज किया है और ND भी यूज किया है. These 2 are connected diagonally. These 2 are connected horizontally. These are vertically. So these are the N4 connectivity and this is the diagonal connectivity. Okay, तो diagonal connectivity ऐसे individual connectivity नहीं दिया है, उसका नाम अलग नहीं है. It is called the N8 connectivity only. So in N8 this consists the horizontal vertical connection as well as the diagonal connection. So this is your N8 connectivity. उसको क्या बोलेंगे, उसको N4 connectivity बोलेंगे हम लोग फर्स्ट रीजन को. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी diagonal connected नहीं है, सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कनेक्शंस है. ओके, दिस इज द डायगोनल कनेक्टिविटी, तो इट इज कॉल्ड द N8 कनेक्टिविटी. क्लियर? समझ में आया यहाँ पे N4 एंड N8 कनेक्टिविटी? नाउ या, so you can see here the V2 is equal to 1. Okay, so that means you have to consider only
pixels which have a one value. So here this is the one is connected with this one is connected. You can also connect with this. तो यहाँ पे मैंने पूरा पाथ दिखाया आपको. मुझे जीरो को कंसिडर नहीं करना है, जीरो को छोड़ के मैं सारे वंस को एक साथ कनेक्ट कर सकती हूँ इन द 8 कनेक्टिविटी. ओके, नाउ नाउ एम कनेक्टिविटी. अभी एम कनेक्टिविटी क्या है कि एम कनेक्टिविटी में यू हैव टू कंसिडर दिस आर 2 डिफरेंट कंडीशंस फॉर दैट. ओके, अगर आपका Q, there are the 2 different pixels P and Q. if P and Q, अगर Q is in N4P, N4P मतलब क्या कि Q P का नेबर है और कैसा नेबर है, N4 नेबर्स है. ओके, तो मैं उसको M कनेक्टिविटी बोल सकती हूँ. या तो फिर क्या होना चाहिए, Q is in NDP, या तो P का डायगोनल नेबर होना चाहिए एंड उसके साथ में ये जो पूरा सेट है N4P इंटरसेक्शन विद N4Q वो एम्प्टी होना चाहिए. तो अगर वो एम्प्टी है और ये दोनों है तो ये कंडीशन पे भी मैं एम कनेक्टिविटी बोल सकती हूँ. या तो फिर मेरा Q इज इन N4P, मैं उसको एम कनेक्टिविटी बोल सकती हूँ. पहले तो एम कनेक्टिविटी क्यों आया पिक्चर में, तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट होता है जहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज है N4 एंड N8, तो वहीं पे हमेशा पहले उसको N4 को प्रेफर किया जाता है. क्यों? क्योंकि डायगोनली डिस्टेंस, अभी ये सारे मेरे पिक्सल्स है, 1 पिक्सल 2 पिक्सल 3 पिक्सल 4 पिक्सल 5 6 7 सॉरी कहाँ गया, या 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 जो भी है. ओके, देयर आर ऑल स्क्वायर बॉक्स जो है ना वो इंडिविजुअल पिक्सल्स है और वन पिक्सल टू अनदर पिक्सल का जो यूनिट डिस्टेंस रहता है दैट इज 1 और डायगोनल जो डिस्टेंस रहता है इट इज 1.4. ओके, तो जब भी हम लोग किसी का पाथ सिलेक्ट करते हैं ना तो पिक्सल P2 पिक्सल Q तक पहुंचने के लिए नंबर क्या डिस्टेंस है उसका, तो हम लोग यूनिट डिस्टेंस पहले प्रीफर करेंगे क्योंकि यूनिट मतलब स्ट्रेट वे N4 पहले प्रीफर करेंगे. क्यों? क्योंकि वो यूनिट डिस्टेंस है और डायगोनल जब प्रीफर करने जाएंगे तो 1.4 हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कंसिडर किया जाता है हमेशा. ठीक है, तो इसीलिए पहले हम लोग N4 अगर पॉसिबल है तो N4 कनेक्टिविटी करते हैं, अगर नहीं पॉसिबल है देन वी कंसीडर द N8 दैट इज डायगोनल कनेक्टिविटी. तो M कनेक्टिविटी दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो यहाँ पे फर्स्ट सपोज एग्जांपल कंसीडर करते हैं M कनेक्टिविटी का. तो मैं V इज इक्वल टू 1, आई हैव टू कंसीडर ओनली 1 वैल्यू. ओके, और दिस इज माय P एंड दिस इज माय Q. अगर ये दोनों को कनेक्ट करना है तो आई कैन से इट इज N4 कनेक्टिविटी या आई कैन से इट इज M कनेक्टिविटी. दोनों को मैं कनेक्ट कर सकती हूँ. फाइन. अगर ये दोनों को कनेक्ट करना है आई कैन ऑल्सो कनेक्ट दिस टू 1 and 1. नाउ दिस आर ऑल्सो कनेक्टेड इन M कनेक्टिविटी क्योंकि वो दोनों N4 में है. क्या बोला है, Q इज इन N4P. ओके, तो आई कैन कनेक्ट क्योंकि ये N4P में है तो आई कैन कनेक्ट हियर. आई कैन कनेक्ट दिस पार्ट. This one is connected to N4P. This one is also connected to N4P. This one is also connected. This one is also connected. तो अगर पॉसिबल है तो मैं ऐसे N4 कनेक्टिविटी कंसीडर करूंगी. अगर ये नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो, यहाँ पे क्या किया है M कनेक्टिविटी के लिए मैंने, यू कैन सी हियर, यहाँ पे मेरा ये पॉसिबल था N4 कनेक्टिविटी तो मैंने पहले उसको ऐसे ही कनेक्ट किया. बट यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है. A1 को अगर A1 के साथ मुझे कनेक्ट करना है तो यहाँ पे मेरा सेट 1 है तो मैं 0 यहाँ से ऐसे तो जाऊंगी नहीं कि 1 को 0 के साथ और 0 के 1 के साथ. मैं N4 अप्लाई नहीं कर सकती बिकॉज 0 इट इज नॉट इन माय सेट. ओके, तो यहाँ पे मुझे ये कंसीडर करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे डायगोनली कंसीडर करूंगी. जब मैं डायगोनली कंसीडर करती हूँ तो यहाँ पे आप चेक करो ये कंडीशन प्रूव होगा ही होगा. Q इज इन NDP, तो ये वो NDP में तो है. दिस इज माई P एंड दिस इज माई Q. अगर ये 2 पिक्सल मुझे कनेक्ट करना है तो वो NDP में तो है. ओके, एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई. सेकंड क्या है कि N4P इंटरसेक्शन ऑफ N4Q. N4P अगर आप लेंगे उसका N4P, तो उसका N4P में क्या आएगा, ये और ये मतलब 0 वैल्यू है. और N4Q अगर कंसीडर करते हैं तो ए उसका Q मतलब ये उसका भी यहाँ पे 0 सेट्स आएगा. तो आपको क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन है वो 0 एम्प्टी होना चाहिए तो एम्प्टी है. यहाँ पे कोई पिक्सल से नहीं है उसके आजू बाजू में
क्योंकि हमको 1 पिक्सल से कंसीडर करना है जिसका वैल्यू 1 है, 0 वाले कंसीडर नहीं कर सकती। तो अगर मैंने उसका n4 फिर कंसीडर किया फॉर दिस पिक्सल, तो उसका सेट, और यहाँ पे अगर n4 क्यों मैं कंसीडर करती हूँ तो दोनों का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो वो ऑलवेज एम्प्टी ही रहेगा। दैट मीन आपको क्या करना है m कनेक्टिविटी में, फर्स्ट यू हैव टू कंसीडर n4 कनेक्टिविटी, जहाँ पे n4 कनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है वहीं पे हम लोग n8 कनेक्टिविटी कंसीडर करेंगे, तो इट इज कॉल्ड द m कनेक्टिविटी। ओके, तो यू कैन सी हियर, पहले यहाँ पे पॉसिबल था तो मैंने n4 कनेक्ट किया, दिस वन इज आल्सो n4 कनेक्टेड, दिस वन इज आल्सो कनेक्टेड विद दिस वन n4। now here there is no possibilities for n4 connectivity, so I have to consider the n8 connectivity। now again it is possible, तो मैंने इसीलिए अभी आप यहाँ पे देखो मैंने ये दोनों को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया है, क्यों? क्योंकि n4 कनेक्टिविटी इज पॉसिबल ओवर हियर। तो अगर ये दोनों को इंडिविजुअल करके इनका इंटरसेक्शन लेने जाएंगे तो आपको एम्प्टी नहीं मिलेगा। तो दोनों में से एक कंडीशन पॉसिबल होना जरूरी है। अगर n4 पॉसिबल होता है तो फर्स्ट कंसीडर द n4 कनेक्टिविटी, नहीं है देन वी कंसीडर द n8 कनेक्टिविटी। ओके, तो n4 है तो मैंने उसको उसके साथ पहले कनेक्ट किया, देन आई कैन कनेक्ट हियर, देन आई कैन कनेक्ट हियर। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे 1 नहीं था तो मुझे यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट ही कनेक्ट करना है उसको, तो ऐसे पूरा बनेगा ये। Ma'am, can you go back to previous page? यस, Thank you, ma'am. तो अब जो भी मैंने बनाया है यू कैन सी, ये दोनों को मैंने कनेक्ट करके बताया। ओके, तो ये दोनों कनेक्ट हुआ, ये दोनों भी कनेक्टेड है, ऐसे 3 को मैं कनेक्ट कर सकती हूँ। और यहाँ पे अगर मुझे ऐसा कनेक्ट करना है, ये पिक्सल टू ये पिक्सल तक जाना है, तो आई हैव टू कनेक्ट लाइक दैट, देन एंड दिस वन। तो जब तक n4 पॉसिबल है तो हम लोग n4 कनेक्ट ही करेंगे, नहीं होगा तभी हम लोग n8 में जाएंगे। तो वो मैंने नेक्स्ट एग्जांपल में बताया। मैम यस यस, मैम पीछे की स्लाइड पे जाओ ना एक बार। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रहा है। मैम पीछे के स्लाइड में अभी जो स्लाइड था यस, मैम, वो सी वाले में दो ऊपर के 1 बाकी, उसको क्यों नहीं कनेक्ट किया? उस मतलब जस्ट एग्जांपल लिया है मैंने, पिक्सल से 3 पिक्सल अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मैं ऐसे करूंगी उसको। ओके, गॉट इट मैम। या उसको भी लेंगे, कंसीडर किया जाएगा। अगर मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ द एग्जांपल्स बताए, ये मेरा P है, ये मेरा Q है, यहाँ पे ये मेरा P है, यहाँ पे ये मेरा Q है, दिस इज माय P एंड दिस इज माय Q, सो आई कैन कनेक्ट लाइक दैट। ये एरो इंडिकेट करना रहेगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे दिस इज माय P एंड दिस इज माय Q, तो अगर P को Q के साथ कनेक्ट करने जाना है तो मैं ये पाथ चूज करूँ। तो P एंड Q का पोजीशन चेंज किया है चारों डिफरेंट केसेस में। क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, we do this for efficiency, na? Yeah, this is for the efficiency. उसके बेस, इसके बेस पे हम लोग एग्जांपल करेंगे। उसका एग्जांपल आता है, कॉल्ड द डिस्टेंस कैसे मेजर किया जाता है। तो पहले नेबर्स सीखे हम लोगों ने। नेबर्स क्या है? नेबर्स से हम लोग कनेक्टिविटी पे आए, तो बोथ आर द रिलेटेड। अभी कनेक्टिविटी पता चली, देन वी कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पिक्सल P टू पिक्सल Q। तो कैसे किया जाएगा? वो कनेक्टिविटी यूज करके ही किया जाएगा। उसको पाथ कैसे बनाया जाएगा? तो वो कनेक्टिविटी से ही पाथ लिया जाता है। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज डिस्टेंस। कितना टाइम हुआ? ओके, टाइम इज टाइम हुआ है। ओके फाइन, डिस्टेंस वाले एग्जांपल्स कल करते हैं हम लोग। फाइन, आज का लेक्चर समझ में आया? किसी को डाउट है कुछ? स्टिल कनेक्टिविटी? नो मैम। अदर स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Clear. No, ma'am. Yes, ma'am. Clear. क्लियर? आज का और कल का, क्योंकि कल का वो डायरेक्टली मैंने वर्बली लिया था, थोड़ा डिफिकल्ट गया होगा, तो इसलिए मैंने वापस आज रिपीट किया। तो अभी भी कुछ डाउट है तो बता दो आज और कल के लेक्चर में।